Hello, everyone. This is Sunny here from Dramalog. We are back again with another new episode and another review. Today, we are planning to review the second and third episodes of another favorite drama, which is Farar. And once again, I have Sana from Dramalog with me and Faraz from Drama Pakistani. We're all together here to share our views and take on the progression of this drama and what we liked and what we disliked. So how are you guys? How's it going? Hey, assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, everything's going good. It's just very, very, very cold here. Extremely cold. Yeah, it was 10 degrees today. Like minus or no, plus 10. plus 10, okay. That's warm for Illinois, right? No, it's not. It's cold. Like for this time of the year, it's really cold. Oh God. Yeah. Yeah. We are in our 20s in the daytime, and it does go down to 10s in the night. But so far, California hasn't really seen the bite of the cold yet. I don't know. It's like extremely frigidly cold. अच्छा, ऐसा आती है? नहीं, यहाँ जो सर्दी आती है ना, वो बड़ी रोमांटिक मिजाज की सर्दी होती है. वो सर्दी जो कि यश चोपड़ा की फिल्मों में दिखाई जाती है, तो इसीलिए मैंने with a shawl and like a warm sweater. वो जो सिलसिला के अंदर सर्दी दिखाई है, जो चांदनी जो मैं मूवी देख रहा था, आपको मौसम कह रहा था चांदनी देख, इसी वजह से मैं चांदनी भी देख रहा था, क्योंकि वो हल्की हल्की सर्दी और वो रोमांटिक मिजाज का मौसम थोड़ा सा आया हुआ था. मैं कहा चलो बेगम तो सो रही है, मैं चांदनी देख लेता हूँ जब तक, इसी में खुश हूँ. anyway, तो लेकिन ये कि फरार के बारे में बात करना चाहेंगे हम लोग. फरार तो एक रोलर कोस्टर राइड हमें लेके जा रहा है और इतना मजा आ रहा है कि वी हैव सो मेनी गुड शोज कमिंग ऑन राइट नाउ, एक के बाद एक, और एक मीम से मोहब्बत भी आ जाएगा थोड़े दिनों में. तो वी हैव रियली गुड ड्रामास कमिंग अप. तो जी सनी, शुरुआत करते हैं, कहाँ से बात करते हैं? अच्छा, तो फर्स्ट तो हमने सेकंड एपिसोड देखे. तो मुझे तो सेकंड एपिसोड थोड़ी स्लो लगी, बट खैर प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी तो थी इन अ वे. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट फरार इज देयर आर मेनी कैरेक्टर्स, देयर आर मेनी पैरेलल थ्रेड्स गोइंग ऑन, राइट? एंड दे इन एवरी एपिसोड दे ट्राई टू टच अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम and show us the progression of each and every track. So right from, Batish ke saath kya ho rahi hai, his romantic track as well as his other track. We also saw a new character being introduced in the second episode, which is Batish's friend. And then we see Babrik's track, we see the track of Sohai Ali Abro's character. So all these tracks are, we know, and then Ahmed Ali Akbar's track as well, right? So coming to my favorite part was that the introduction of the new character, which is the friend, Batish's friend. Looks like they had a very, ugly past. They were very good friends and probably had an ugly fallout. And Batish is trying to reconnect with him. What I liked about the two were the honesty in their relationship. At no point was the friend, although he was aware of Batish's true nature and the kind of person he is. Like, he's obviously into gundagardi and murder. He's a murderer. But even knowing all of that, he was at no point intimidated by Batish. And he was very honest and upfront with Batish. And Batish at the same time needed him. And he was seemed like his only support system that he could find. And the only person he could trust with his feelings and everything. So any take on that, on the new character, guys? For me, the new character was a good introduction, but I don't know how far it's going to go, because he will be the one who's gonna take Batish's rishta, right, to her Sadia's dad, but I don't know how far along, like how far it's gonna go. I have a feeling he's gonna die. Could be, but he has been resisting. I mean, he has been pointing out why he would not do it, and he has been giving him reasons. And he was the voice of reason, sort of, that made Batish kind of like change his plan and his commitment to his party also. So he was genuinely trying to,
change himself. Mm-hmm. What was interesting to me जो सनी was ने कहा ना आई एम सॉरी, जो सनी ने कहा ना वॉइस ऑफ रीजन, तो मेरे ख्याल से वो वही है जो बातिश के कैरेक्टर को चेंज करेंगे आगे जाके, और बातिश जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको वो रास्ता दिखा रहे हैं एक तरह से कि भाई अगर तुम ये चाहते हो कि मैं मतलब तुम रिश्ता तो लेके जाना चाहते हो, लेकिन कहोगे क्या कहोगे तुम, कि क्या काम करते हो, तो ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और अगेन कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पार्टी में बातिश है, और एक चीज आप लोग मैं भी, बड़ी एक चीज है जिसे कहते हैं ना, हम लोग यूजुअली स्टीरियोटाइपिंग करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर कोई टारगेट किलर है या अगर कोई असैसिनेटर है जो असैसिनेशन करता है, वो उसका एक सर्टेन काइंड ऑफ गेटअप होगा, दाढ़ी बड़ी भी होगी, आंखों में आंखें लाल होंगी और हर वक्त, बट बातिश कम्स ऑफ एज अ वेरी एवरी नेबरहुड, जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट डोर नेबरहुड काइंड ऑफ अ बॉय, के नेक्स्ट डोर बॉय कह ले, जिस तरह लगता है कि एक आम सा दिखने वाला इंसान, सही तरह बात करने वाला इंसान, बट ही इज अ टारगेट किलर इट्स इटसेल्फ इज नॉट एन इजी थिंग, बंदे मार रहे हैं भाई, जान से मार रहे हैं बंदों को सीधा सीधा, एंड वी सी द मैनेस लेटर ऑन कि किस तरह का मैनेस उस आदमी में, बट तो ये चीज भी एक ट्रेजेक्ट्री जो उसके कैरेक्टर की है, वो लाइक सनी सेड वॉइस ऑफ रीजंस है जो उस डायरेक्शन में ले जा रही है। वो क्या ना, हेरा फेरी मूवी में वो कहता है ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। So, okay, औरत का I would चक्कर like ने to ठीक कर add दिया। something here. I just want to add something here. See, this is what we're missing in Dunyapur. So even a bad character or an evil character has a human side. And that is important to show Very human for side, the you're character right. to be connected to the audience. Yes. I remember we saw this first in the movie called Satya, which was Ram Gopal Verma's movie, where he was a complete gunda, but he had Yeah, this every softer evil side. person has this side because Yeah. everyone has a heart, everyone has emotions. Right. So we all do. And Batish is not a good person, right? I mean, you wouldn't call him a good person. He's out there killing people. अच्छा सना, मैं एक बात आपकी यहाँ पे मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने तो पार्टीबाजी और ये जिस पार्टी को, ये अब तो ये खैर क्लियर हो गया कि एमक्यूएम को ध्यान में रख के You were बनाई right, गई है। yeah. हाँ, तो अब तो क्लियर भी हो गया, पीक्यूएम करके वो बात कर रहे हैं, तो एमक्यूएम का एक्यूएम या पीक्यूएम, तो मैंने अपनी आंखों से टारगेट किलर्स भी देखे हैं। और Are you serious? हाँ, जो पार्टी जब हम लोग जब बड़े हो रहे थे 90s के टाइम पे, मैं बड़ा हुआ, और 90s का टाइम पाकिस्तान में कराची में खासतौर पे एमक्यूएम का टाइम कहा जाता है। 92 का ऑपरेशन मैंने देखा जब मैं यंग था, तो हमें नजर आते थे, बल्कि किस तरह, मतलब मैं अगर ये कहना चाहूँ कि मैंने इस तरह से भी देखा है कि हमारे बड़े भाई हैं, कोई मोहल्ले के अंदर या गली में एक बड़े भाई हैं, हम उनके साथ गपशप लगा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, नुमान भाई नाम था उनका, आई कैन से टू यू के नुमान, मुझे याद है वो नुमान भाई थे, और 2 दिन के बाद हमें पता चला कि उनको मार दिया किसी ने। Oh wow. Oh my God. हाँ, और हमने पूछा क्या, वो तो बड़े अच्छा आदमी थे, वो तो हमसे अच्छी तरह क्रिकेट भी खेलते थे, तो पता चला कि 4 दिन पहले वो दूसरी पार्टी के लड़कों को मार के आए, जो कि आप देखते हैं ना कन्वर्सेशन हो रही होती है कि वो कहता है कि तूने वो नजरियाती पार्टी ज्वाइन कर ली है, दूसरी पार्टी में चले गए हो। तो ये मैंने देखा है, तो जो सना कह रही है ना कि ह्यूमन, मैंने बाकायदा ऐसे इंसानों को देखा है जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेंगे, बिल्कुल सीधे साधे से और एक आम इंसान की तरह, बट बीनीथ दे आर कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स फॉर देयर पार्टी। और ये दिखाया इस तरह से, it's called brainwashing. हाँ, ब्रेन वॉशिंग कह लें, वो उस तरह की बातें करते हैं कि कौम के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें पंजाबी मार रहा है, बलोची मार रहा है, उर्दू को लड़ना पड़ेगा, तो ये सब चीजें। Yeah, but I think you also have a side to you, especially people like Batish, na, which we do see in the 3rd episode in the last scene, right? Okay, he can kill for his own purpose as well. So yeah, so we will come to that, of course. So I really like the friendship that was shown, but what was interesting to me was that in the first episode we thought that other guy, the tall guy whom I think I forgot his name, but his Humayun Said ka bhai. Bhai. He seemed like his buddy, right? Like his closest buddy in the group, and
but he kept the relationship and the girl and everything a secret from him, and he did not disclose everything to him. So on the contrary, he went to this friend and he kind of told him everything, even showed the girl that he's interested in to this other friend of his, whom apparently he was out of touch with. So that was interesting to me, that Batish ke man mein bhi hai ke I can trust him, but I probably can't trust this other guy. No, he told him, because remember he says that you knew this guy was the one who was being targeted, Hamdani Saab. Yeah. नहीं वो एंड का सीन है, ये कुछ और कह रही है. Right, no, she's saying that he did not tell her. He doesn't trust him. Yeah. But he told her who the girl is. Did he? Because he told when the leader was pushing him, he said, I don't know who the girl is. I just know there's a girl. Well, he knew about the Hamdani, so he said you knew it was Hamdani, but you still brought me here. In the very last करते हैं, चलो वो जब उस पे बात करेंगे फिर हम ये अनटेंगल करेंगे. Maybe there's something I missed. That's a good point. That's a good point, Sana. That's a good point. So we can discuss it. क्योंकि मुझे भी लगा था कि शायद वो नहीं जानता सादिया के बारे में, या उसने नहीं बताया. Anyway, so I think वो जो एपिसोड थी उसमें बस बेसिकली ओवरऑल यही था कि वो कह देता है कि अभी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और उसमें बब्रिक की हमें फियांसे के बारे में पता चलता है कि बब्रिक की फियांसे कौन है, बब्रिक किस तरह से मिसचीवियस कर रहा है और किस तरह तंग करके रखा हुआ है. बब्रिक के बाप के जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी उनकी, जिस तरह से काम डाउन करते हैं होने वाले को. बट वी कैन सी कि जो बब्रिक का होने वाला फादर इन लॉ है, ही इज नॉट दैट हैप्पी विद हिम. और I like the scene with the Nihari scene. The बोटी वाला. Yeah. उसमें बोटी वाला ये बड़ी बोटी है और आंखों से कैसे वो ट्विच करता है वो. I know, it was so cute. It was such a cute scene. It was like my favorite scene. But it's like typical of men, right? He would exaggerate that impression later on. कि like मुझे देख के हंसी और क्या करती वो. लड़की भी बड़ी प्यारी लग रही है वैसे है. मामिया, yeah, she's cute. She's like शुक्रिया बड़ी बोटी के लिए. And then with that interaction he deduced that she likes him. How typical men. Yeah, like that she's in love with him. Like, उसने हाँ कर दी, उसने हंसी बोल दिया सब कुछ, और क्या करती वो. नहीं तो हमजा अली अब्बासी आपके दरवाजे पे आए और आपको आके निहारी दे और उसमें से बोले कि बड़ी बोटी इसके अंदर है, तो आपका भी दिल पिघल ही जाएगा. ऐसी बात तो नहीं है. मैं कहूँगी मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे why do you want me to have बड़ी बोटी. हमजा अली अब्बासी को देखे ना, आप निहारी मत देखे, लाने वाले को देखे. लेकिन पूछे ना कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं बड़ी बोटी. वो फिर वो बताता आगे जाके, वो शर्मा गई ना. वो समझ गई. नादान बन रही है बहुत, प्यारी समझ गई. नहीं, वो एक हंसती है ना, विथ लाइक करके एक हंसती है, तो शी गॉट द पॉइंट. क्यूट है बड़ी, बहुत प्यारी, बड़ी प्यारी लग रही थी उसमें, अच्छी खुले बालों के साथ. And so that was Babri ka scene बहुत cute. The way his I don't know if it's the third episode maybe where the dad उसको मुर्गा बनाता है. I know. He's like शरिया में allowed नहीं है. Oh God. अच्छा, बबरिक जो है वो बड़ा मजे का फ्लेवर लेके आ रहा है. डैनी जी, as you guys say him, I'm not gonna call him Daniel Zafar, I'll call him Danny Z. Danny Z, yes. He's bringing in that humor as well, और अच्छी एक्टिंग कर रहा है यार. He's good, यार. He's a better actor than a singer. अच्छी कर रहा है एक्टिंग. अली ज़फ़र एक्टिंग भी करता है. हाँ, अली ज़फ़र, हाँ, तो अपना he's a producer director है. अली ज़फ़र is multi talented भाई. अली ज़फ़र गाने भी गाता है, उसने एक्टिंग भी किया है ना. No, he's acted. Okay guys, I'm going to give you two TV. यार अली ज़फ़र का आप देखे लुंडा बाजार. Okay fine. लेकिन ये क्या चीज है? ये ड्रामा है पुराना, खलील रहमान कमर ने लिखा था ये. अली ज़फ़र के था वो. अली ज़फ़र थे उसमें नहीं थे, किसी गुलाम गर्दिश या कोई और ड्रामा था, मैं आपको बताऊंगा. लेकिन थे अली ज़फ़र भी एक ड्रामे में थे. लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू टू
two things that you should watch for Ali Zafar. एक तो बहुत पुराना टीवी शो है, इट्स अ फन शो, इट्स अ वेरी फनी शो, इट्स कॉल्ड कॉलेज जीन्स. उसमें अली जफर भी है, उसमें ये मामिया के जो फादर हैं, नूर नाम है इनका, ये भी हैं. हाँ, Noor Hassan, right? That's his name, right? He was in नूर हसन. Dil Na Ummid To Nahi. He was in that drama. अरे उसमें वो पुराना ड्रामा है. That was when we were young. तो उस वक्त अली जफर और ये मतलब इट्स अबाउट अ यूनिवर्सिटी या लाहौर का कोई है, नेशनल आर्ट्स है करके, NSA है, जो भी नेशनल साइंसेस कुछ करके है. कॉलेज की स्टोरी है, कॉलेज के अंदर जो कॉलेज में बच्चे करते हैं मस्तियां, और तो उसमें ये बहुत सारे, अली जफर भी उसमें है. मोमो जो खूबसूरत है उसके अंदर, आयशा नाम है उसका लड़की का, वो भी उसमें है. उसमें ये नूर हसन भी है. you'd enjoy that. And the second one is अभी अली जफर की मूवी आई थी. अली जफर ने बॉलीवुड में भी काम किया है यार. Oh yeah, actually, I actually really liked him in Bollywood movies. Like, I think I've seen 3 of his मेरे movies. ब्रदर, All हाँ I बताओ. have not seen a single one of. I have not seen a single one. I think I've seen 4. What? 4 or He's even 5. 4 before, really? 5, yeah. I liked him on all of them. I think it was his first one was so good. Tere Bin Laden. So good. तेरे बिन लादेन से तो हिट हुआ था. हाँ, अच्छा. हाँ, और तेरे बिन लादेन इतना अच्छा था. मेरे ब्रदर की, हाँ हाँ, तेरे बिन लादेन, मेरे ब्रदर की दुल्हन. And I also liked him in Tifa in Trouble. Tifa in Trouble. Sana, Tifa in Trouble is the Pakistani movie of Ali Zafar. Massive scale पे बनी हुई, proper जबरदस्त movie बनी हुई. Is there a link I can watch it on? Like, where can I watch it? Netflix. I'll find I saw it in Netflix. I remember. Really? Yeah. Go ahead. Yeah, I saw it in Netflix. I remember, and it's a complete masala movie. Yeah. That's how I came to know about it. I don't know if it's still there or not. But उसमें हीरोइन कौन है? सना को जरा बताएं, हीरोइन कौन है उसमें? My favorite, Maya Ali. Oh my goodness, no way! I cannot watch it. No, माया अली का बिल्कुल अलग रोल है उसमें. कैसा रोल है? मजेदार रोल है. It's a masala movie. Brain को अलग रख के देखना. हाँ, मजेदार मूवी है. लाहौर की गलियां दिखाई हैं, लाहौर का फ्लेवर दिखाया है, और उसके बाद दे गो टू डेनमार्क जाते हैं, या पता नहीं some European, नॉर्वे, कहाँ जाते हैं, some European country, some Scandinavian, right? हाँ, वो लड़कियों को लेके आना होता है उसको. That was also very funny. मतलब मजेदार है. Sana, you should watch it. It's a funny movie. Yeah. ठीक है. Anyway, हाँ, तो Danny Z is better than his brother. better than That's what we're introducing. अब शायद मैं जब याद कर रहा हूँ ना अली जफर की मूवीज, और तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए. अली जफर उन मूवीज में अच्छे आए थे. तो हाँ, but Danny Z has his I like Danny Z. He has his own charm. Me too. Always liked him. So the next one that we will, are we done with Danny Z? And हाँ, I think Babrik का भी तो कुछ इतना खुल के नहीं आया, right? Yeah. We just know that he has a fiance, and the fiance is his cousin, and the fiance's father is not really happy with Babrik. Right, yeah. So I think at some point all of them are gonna run away from their respective. They will all get to converge at some point, right? That's what it looks like. Farrar, that's what Farrar is. Yeah, the story is kind of progressing in those directions that everybody has. And then the third man is Ahmad Ali Akbar Fassi. That's my husband's name. But whenever he says Fassi in the drama, my husband's like, what? Who's calling me? So he's adamant about not apologizing to the person who suspended him, and he's still there. उसका ट्रैक वहीं अटका. His hasn't moved. Yes, no, yep, you're right. वो अभी तक सस्पेंड ही है वो. सस्पेंड ही है, and मुझे थोड़ा पता चला हमें कि he's up against a powerful person, but that's about it, right? So Sohaya Ali Abro's track. Jameel. Oh yeah, they take the other man, the other girl, Sohaya Ali Abro's husband. They kidnap him, the brothers. So they kidnap him?
I thought Yeah, remember they kidnapped him. They kidnapped him. Then they took him to a swimming pool. Okay, I thought he went to see them, and they put him in the swimming pool and started harassing him. हाँ I thought वो they- जाता है भरम मारने के लिए जाता है कि मैं देखता हूँ जाके इन लोगों को कि क्या हशर हो करता हूँ मैं अभी रुको मैं बताता हूँ and apparently he has some file against them. Right. He shows the suit, He something in the has asked him- suitcase, asked right? Suhail, हाँ उसमें कुछ है चीज उसके पास. So Yeah. he has some leverage against them. But Yeah. नादिया जमील यार She क्या is उसने amazing. क्या Oh my वो god! जो Like मासी वाला even scene her है. makeup is on point. Like, Yeah, her body language, like she's sitting like a chaudhry, like chaudhrain or something. अरे भाई जब उसकी जो मासी उसको कहती है मेड उसको अपने शौहर के किस्से बता रही होती है she और वो takes it कैसे upon किस्से herself. बोलती है। और वो जो एक्सप्रेशन दिए उन्होंने ओए होए 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 Yeah. Amazing. It was amazing. She is amazing. वो बालों से पकड़ती है और फिर क्या जबरदस्त कोई वो करती है उनके साथ भाई. मुझे लगा उसके भी जिन आ गया. वो खुद ही जिन लग रही है पूरे ड्रामे में. जिन पे चढ़ेगी जिन्नी. जिन पे थोड़ी चढ़ेगा. JJ. So these were the major लेकिन major वो भाई- developments in episode 2, right? And then हाँ then we have episode 2 and 3 3. कह लें हम लोग. Yeah, episode 3. The Nadia Jamil was in episode 3, and then we find out the other friend was given the target. इसको target दिया था, right? क्या नाम है इसका? बातिश का. नहीं वो तो खेल रहे थे. They were just toying with his वो psyche. टारगेट नहीं दिया था. वो बेसिकली जो नसीर भाई हैं, नसीर भाई जो पार्टी के हेड हैं, उन्होंने उसको कहा था कि टारगेट तुम्हें दे रहा हूँ बातिश का और टारगेट ये है कि तुम्हें सिर्फ पता करना है कि वो लड़की कौन है और वो लड़की क्या करती है, उसका बाप कौन है. तो आई थिंक अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट सना मेंशन, हाँ नाउ इट मेक सेंस कि उसको पता था कि ये सादिया का बाप कौन है और क्योंकि उसने क्योंकि नसीर भाई ने उसको टास्क दिया था कि पता करके लाओ. एंड नसीर भाई इज सच अ गुड एक्टर. इज द सेम, इफ यू गाइस कैन रिकॉल, इज द सेम गाय हु प्लेड मीनू's फादर फ्रॉम जद पत्तों का बर. Yeah. Oh, really? Yeah. हाँ ये वही है. Oh. लेकिन उसमें तो he had a दाढ़ी and a मूछें and everything, right? इसमें नहीं है. नहीं, हाँ. अच्छा. But he's the same guy. Yeah, it's the same actor. Yeah, that's true. He's बड़े phenomenal. अच्छे एक्टिंग कर. And he was there in Breaking News as well. He was a political leader there, a conniving Oh. political हाँ. leader. So yeah, he's a great actor. I think I really like him. What's his name? हाँ तो वो सना का वो हो गया. नाम मुझे नहीं पता लेकिन सना का वो आंसर हो गया. जो सना मैं और सनी जो थे थोड़ा कंफ्यूज थे ना कि क्या उसको पता था, तो वो सीन से रेफरेंस निकाल सकते हैं कि उसने टास्क दिया था टारगेट कि जो पता Yeah. करो. तो ये सीन. अच्छा, ठीक है. So he knew कि हमदानी साहब is he knew. and I think this is the reason he लेकिन but why did he exactly kill him? Yeah, I was also like confused. Like, why go to that extent of killing him? Right? Somebody So are that we going close to talk him. about that scene? Yes. Yeah, because I Okay. think that's about it, right? And I mean, that was the only. That was a major thing, yeah. That's about Yeah. it. तो उस सीन के बारे में बात कर लेते हैं, एक बिल्डअप के बारे में बात कर लेते हैं और फिर एंड में हम बात कर सकते हैं कि क्यों उसने मारा होगा. लेकिन आप लोगों ने ये नोट नहीं किया कि यार जब तक कि हमजा अली अब्बासी ने और उस आदमी ने टारगेट को देखा नहीं होता तो द वे दे आर प्लेइंग. What were they playing? The water droplets. Yeah. That was a game? They were betting. Hey, what's the They were point? I mean, betting. it's like nature based. हाँ, so they were bored ना, so they were betting कि पहले कौन सा वाला नीचे आएगा. Oh my god. What a stupid game. And And at the end, even he Yeah, but says, you "No, see- that's the one that won." Something like that, right? Like नहीं, his वो- last. At the end, he says that the blood drop won. हाँ वो एंड में उसका कनेक्शन जुड़ेगा. लेकिन आप ये देखें कि ये बातिश की नेचर के बारे में क्या बताता है हमें कि वो पानी का कतरा नीचे आ रहा है, so he's like कि नहीं यार अभी मेरा जो फोकस है वो अभी ये है, तो मुझे इसको देखना है. And then he just The way- 360 degrees shift. हाँ Yeah. और जिस तरह से वो एग्जीक्यूट किया पूरा सीन, लाइक यू मुझे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर का वो सीन याद आ गया कि वो कुछ जब वो एक सीन था उसके अंदर गैंग्स ऑफ वसेपुर में कि वो एक ना गोली मारने के लिए आता है, एक बंदा दूसरे को गोली मारने के लिए आता है और वो गोली मारता है तो गोली गन चलती नहीं है
और जब गन नहीं चलती तो दूसरा वाला जो देखता है कि गन नहीं चली तो वो शेर हो जाता है, वो डंडा उठा के उसको मारता है, एंड देन दे हैव दिस होल चेस सीन इन द मार्केट। तो जिस तरह से वो क्या नाम था डायरेक्टर का, नूर हसन, अनुराग कश्यप, नहीं, अनुराग कश्यप, कश्यप। yeah, अनुराग yeah. कश्यप ने जिस तरह से वो जो गैंगस्टर की दिखाया था, मुझे इसमें भी वो फ्लेवर दिखा। एंड आई वाज लाइक यार क्या कमाल उन्होंने वो सीन बना दिया है कि बैठे हुए दोनों गाड़ी में, सामने टारगेट है और अभी ये अपने पानी की ड्रॉपलेट्स के साथ खेल रहे हैं, एंड देन ही गोज टू देम। तो उसके बाद फिर आप लोग बताएं कैसा लगा आपको जब वो देखते हैं हमजानी साहब को। yeah, he's just I want to just say what a star power Hamza Ali Abbasi is. Like when he gets down from, like he's playing like a kid, right, with that water droplet, and then he has the shift and he gets out of the car and he goes for the kill. The walk, oh my God, he walked like a lion. And yeah. and Well, he even is like Hamza. yeah, amazing. And then when he sees him, and immediately his You know expression Hamza means changes. lion, right? Hamza means lion? Oh, is it? Yeah. Wow. This is one guy who's really lived up to his name. Yeah. I was like, what a charisma, yaar, what a star power. Like, and then immediately his expression changes when he sees the actual professor, right? And he's Like his mellows body down. language, his demeanor changes. Yes, and he's in this dilemma, and he's still trying to help him with the scooter. Oh yeah, he was never in a dilemma. I think he just knew that he cannot do anything, and he puts his gun back. Yeah, I guess so, right? And then he helped him with the scooter, and then he walks back. And so the shifts in his expressions, like he gets down to kill, he changes his mind, and he mellows down, and then he gets back, and now he's ready to kill again. So, oh my God, those last few minutes, I was like, hats off to Hamza. I was shocked when he killed him. Yeah, which tells me that there's this psychotic trend in him. Right? Yes, that's the point. Psychotic trend है उसमें। Yeah. ये जो चीज है जो बंदे मार रहा है वो ऐसे नहीं मार रहा। Yeah. See, that is where I got a little unnerved, because in the beginning when he was telling the leader, right, why he wants to quit, he's like, I'm tired of dead bodies. I can't lift that boge of dead bodies anymore. So I feel like as a human being, he's also changing, right? He's genuinely... No, that is not. Like, imagine you have been given a target and you're ready to kill. Uske pehle tum bachcho ki tarah khel rahe ho. No, and then he even says, I will never touch it, I will never do it. But then when he's given the last one ever, he agrees, right? And then even when he says, but then he's not like that, go ahead. He agrees, but then he's not nervous, or he's not like reluctant, or he's not like dissatisfied that, oh, this is my last one, I just want to get done with it. He's playing. Right? Yeah. And then even with the alcohol, he says, I will not, I've given it up. But then his friend says, oh, have you? And then, and then they just joke around and they're like, oh yeah, just bring two packs. Right. So I was like, I was falling in love with this guy, and then I'm like, oh, no. Yeah. He's a murderer, man. He completely played with my head here. Yeah. So जो क्वेश्चन आप लोगों का था शुरू में, जैसे ये था कि आखिर उसने क्यों मारा अपने दोस्त को, तो मैं इसके एक सीक्वेंस आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोग नोट करेंगे जब वो एंड में आता है और वो कहता है कि तुझे पता था ना कि ये कौन है, तुझे मालूम था ये कौन है, तो एक तरह से उसको ही फेल्ट कि यार मेरे साथ ना ये धोखा हुआ है, Betrayed. आदमी को पता है, हाँ, ही फेल्ट बिट्रेड। एंड देन यू शुड ऑल्सो, मतलब आप नोटिस करेंगे कि वो देख रहा होता है जो उसका दोस्त होता है वो हाथ नीचे डाल के ना अपना हिज राइट हैंड गन निकालता है। तो प्रॉब्ली चेन ऑफ कमांड यही चल रही थी पूरे इसमें, पार्टी के अंदर यही है थी कि नसीर भाई ने कहा होगा उसको कि भाई इसको मारने दे, तो अगर ये मार दे तो ठीक है, और ना भी मारे तो तू उसको उड़ा देना, क्योंकि अब वो पार्टी के किसी काम का रहा नहीं बातिश, क्योंकि लीविंग द पार्टी। और पार्टी जैसे वो सनी ने रेफरेंस दिया था ना मूवी सत्या का, कि उसमें यही होता है कि पार्टी, गैंगस्टर पार्टी को छोड़ना कोई वो नहीं होता। जितनी भी हमने गैंगस्टर मूवीज भी देखी हैं जो it's hard to leave them, they're always killed at the end because obviously they know too much ना, so they know too much, तो कि पार्टी को छोड़ना वो अक्सर हमने देखा है मूवीज में, ड्रामों में कि
जो भी इस तरह के गैंगस्टर मतलब गैंग को छोड़ना चाहता है तो सब यही कहते हैं कि भाई ये सिर्फ वन वे स्ट्रीट है, इसमें आना पॉसिबल है, वापस नहीं जा सकते आप। तो सिमिलरली यही सीन था, उसको शायद नसीर भाई ने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि भाई जैसे ये काम तमाम करे हमदानी साहब को तो या तो उसको मार देना, और अगर ये काम ना तमाम करे तो भी मार देना। तो उसने पहले गन उसके दोस्त ने निकाली थी। Okay. I missed that part. So that makes वो complete sense now. हाँ, वो आवाज भी आती है ना वो चेम्बर खींचने की, गन का चेम्बर जो आई थिंक वो पहले हुआ था, राइट? बहुत काफी पहले इन द बिगिनिंग उसी वक्त हुआ था। ओके, आप नोट किए कि I चेम्बर see. खींचने की आवाज आती है, कचक एक अच्छा। आवाज होती है गन की ना। See, I completely missed it. That explains everything then. तो वो इसलिए मार देता है। और फिर उसके बाद किस तरह से डायरेक्टर्स ने, तभी मैं अनुराग कश्यप की एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से अनुराग कश्यप वाला टच आया है कि पहले वो वाटर ड्रॉपलेट से खेल रहे होते, उसके बाद वही खून जो होता है, वो जो ब्लड होता है वो शीशे के ऊपर आता है, Right. और उसकी 2 ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही होती हैं, एंड देन ही सेज कि मैं जीत गया। Right. Yes. कितना काम तरीके से वो मारने के बाद रिलैक्स है। एंड दैट्स द सेम गाय जिसके साथ बैठ के थोड़ी देर पहले वो पानी वानी कुछ अपना प्रोग्राम कर रहा था पीने पिलाने का, और गपशप लगा रहा था, और कह रहा था कि मैं तो सोच रहा हूँ 4 महीने चिल्ले पे चले जाऊं। That was funny. 4 महीने spinner like pilgrimage. वो चिल्ला होता है ना, Like तबलीगी, right? तबलीग। हाँ, तबलीगी जमात, सह रोजा कहते हैं, उसमें जाते हैं ना। I don't know, सही रोजा? हाँ, सह रोजा कहते हैं, 4 महीने चले जाते हैं लोग। वैसे तो 40 दिन के लिए जाते हैं, सह रोजा होता तो वो 4 महीने भी चले जाते, तबलीग में चले कहाँ जाते हैं? यार ये बड़ा फनी चीज है, ये ना पाकिस्तान के सारे या लड़कों को पता है, इंडिया में भी होता है सनी है कि ना मस्जिद से ना कमेटी निकलती है एक तबलीगी जमात वालों की, और वो डोर टू डोर जाती है, और वो वहाँ यंग लड़के होते हैं जो कुछ 15-16 साल के लड़के बड़े होते हैं, उनको पकड़ के कहते हैं भाई कहाँ घूम रहे हो, मस्जिद की तरफ आओ, नमाज पढ़ने आओ। तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन वो हमें पूरा याद होता है, बल्कि मैं आपको सुना भी देता हूँ जो उनकी पिच होती है ना, जिस तरह से वो करते हैं, लड़कों को घेरते हैं। वो आप जाएंगे ना तो वो आपको बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, ब्रदर फराज इधर आइए जी, जी ब्रदर फराज। वो फिर इनकी एक लाइन इस तरह शुरू होती है, मेरी और आपकी कामयाबी हत्ता के क़यामत तक आने वाले हर इंसान की कामयाबी इस बात में है कि वो दीन की तरफ आए। और दीन की तरफ किस तरह आएगा, इशा की नमाज के बाद बात होगी, मस्जिद में आइए बैठ। ये इनकी नॉर्मल, मुझे याद है क्योंकि मैं कर चुका हूँ काम। You were in तबलीग? नहीं, तबलीगी नहीं, वो होता है कि मोहल्ले के लड़के होते हैं ना जो बड़े इन होते हैं, वो इनको अपने साथ मिला लेते और कहते हैं आप भी मिल गए थे? मिल जाते हैं, हमारा क्या, हम चले जाते हैं। एक टाइम होता है, लड़कों को क्या चाहिए होता है, वहां वो जाए, नमाज के बाद बैठे, दीन की बातें करें, और सारा हमारा इंटरेस्ट होता है कि इसके बाद हमें खाने के लिए मजेदार चीज मिलेगी। तो फिर हमारा इंटरेस्ट उस तरह होता है कि हमें ये मिलेगा। तो अच्छी, तो do they talk good like at the masjid after Isha? That's हाँ, they talk good, obviously they talk good. हमारे भी आते हैं हमारे यहाँ पे कभी कभार। अच्छी बात होती है, वो बुलाते हैं, लेकिन लड़के थोड़ा ना कतराते हैं उनसे, जो अच्छा, थोड़ा कतराते हैं कि यार अबे यार क्या है यार। अच्छा, हमारे पास आए ना तो they were asking, they had my name on the list, ठीक है? They're like, oh, Sana Mohsen, are you her husband? So they only had my name, my address, only with my name on it. तो आपका नाम डला हुआ होगा ना येलो पेजेस पे, व्हाइट पेजेस पे? पता नहीं, मेरा you know if you Google me, you'll see my address, my phone number, everything is there. अच्छा, yeah. सबको बता दें, आप सबको बता दें जो सुन रहा है, जो पॉडकास्ट सुन रहा है, सबको बता दें सना मोहसिन को गूगल मुझे कर लो। गिफ्ट So guys, if you want to send gifts or flowers or anything to Sana, you know how to contact her. Anyway, तो ऑफ टॉपिक निकल गए, लेट्स कम बैक टू फरार। तो ओवरऑल बड़ा जबरदस्त ड्रामा है भाई, मुझे तो मजे आ रहे हैं। कर्जे जहाँ भी हम देख रहे हैं संडे को, फिर हम ये देख रहे हैं, हमें मजा ही मजा है भाई, मजा ही मजा। But you know between Karzejaan and Farar, I would still prefer Karzejaan. Yeah. Karzejaan is a different Karzejaan is a different flavor, and I like it more because it is more family oriented. Farar is more violent and political. हाँ, लेकिन हर किसी को अपनी ऑडियंस मिल जाती है ना। अब जैसे मेरा ताल्लुक कराची से, और मैं देख रहा हूँ, रिलेट कर पा रहा हूँ कराची की जो पावर डायनामिक्स थी और पॉलिटिक्स, मुझे पता चल रहा है कि हाँ यार ये है, ये टारगेट किलर कैसे होते हैं, पार्टी क्या है, MQM PQM जो भी उन्होंने बना दी। तो हाँ, एक और फन बिट मैं आप लोगों के बारे में आप लोगों से शेयर करता हूँ।
I asked the question from Musaddiq Malik as well, and then Wajahat Hussain, who's the director of it. एक ना आप लोग गूगल कीजिएगा. You asked them question? हाँ, मैंने एक सवाल किया, जवाब नहीं आया अभी तक. मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने सवाल क्या किया आपसे. सवाल किया क्या? मैं करूँ सवाल? मैं पूछती हूँ. हाँ, आप भी शायद मुझे जवाब दे दे. आप भी पूछे ना, I'll tell you. और जो लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो भी इसके बारे में सोचे. आप लोग गूगल कीजिएगा स्वालत मिर्जा. He was a कौन? स्वालत मिर्जा. Can you spell that? I'll spell it. It's SAULAT and MIRZA. स्वालत मिर्जा. Saulat Mirza. हाँ. So He was a Pakistani convicted murderer, target Yes. killer, and political Target activist of the killer. Muttahida Yes. Qawmi movement. Yes. He has a spouse, Nikhat Mirza. Yes. Now the point that I'm trying to raise is कि मुझे ऐसा लगा कि शायद बातिश जो है ना वो उससे लूजली इंस्पायर्ड है, बिकॉज आप देखिएगा कि इफ यू सर्च स्वालत मिर्जा लव स्टोरी तो यू वुड फाइंड के उसकी लव स्टोरी के बारे में भी बहुत सारी बातें की गई हैं. ऑनलाइन आपको मिलेगा कि ही वाज इन लव विद अ वुमन, मे बी हिज वाइफ, जो अभी है निगत मिर्जा. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद उसके ऊपर लूजली बेस्ड है, इंस्पायर्ड है. सो यू गाइस कैन डू योर थिंग एंड मे बी सी सिमिलैरिटीज दैट मे बी वो भी टारगेट किलर था, ये भी टारगेट किलर है, और क्या पता उससे इंस्पायर होके. बट ऑब्वियसली आगे हमें नहीं पता क्या होगा, बट मे बी. सो या दैट्स माय फन बिट या थ्योरी कि शायद उससे इंस्पायर होके लिया है. Interesting. Yeah. So I'm actually a little apprehensive. Like these tracks are so unrelated, and usually these kind of stories work when they all kind of merge together into one cohesive thing. So I'm kind of worried that they may not be able to bring it cohesively together. So we can only wait and watch how things will unfold. But yeah, but if they do get it into a cohesive space, then I think this will be a great show to watch. It's really good. हाँ, जबरदस्त है. मतलब अच्छा चल रहा है. आप जो जिस जॉनर की जो टीवी शोज हैं उसमें तो ये बहुत अच्छा जा रहा है. Yes, so far so good. Although, the focus has been mostly on Batish, and I mean, I hope they start focusing on the others also. अरे क्या फोकस यार सनी, वो पूरा वो बंदा आपने खुद ही बताया उसकी know. देखें, पावर देखें, वो जब आता है तो आप कुछ देख नहीं पाते इधर उधर की चीज. I know. No, I am actually desperately waiting for him and Ahmed Ali to clash on screen. So I'm desperately because Ahmed को दिखा ही नहीं रहा है, and whatever little glimpses we're seeing, we really like, right? So जैसे वो जो बॉलीवुड में होते हैं कि होता था किसी जमाने में कि दिलीप कुमार और अमिताभ एक साथ स्क्रीन पे कब आएंगे, या अमिताभ और शाहरुख कैसे. सो दिस इज द सेम थिंग ना, अहमद अली अकबर और ये कब आएंगे. Yes. Nice. So हाँ, रेटिंग्स देना चाहें आप लोग अपनी अपनी. I would give it an 8 or 7.5 actually. So you gave 8.5 to Karza Jam and 7.5 to this one. Explains why you like Karza Jam more than. Yes, I do. For me, I think it's an 8. The reason I'm giving it an 8 is because, like I said earlier, that I do want to see what the other tracks are bringing to the story, right? So far, we don't know much about them and where are they leading. So थोड़ा balance करनी पड़ेगी story को. That's what I feel. Obviously, I mean, if you reduce Batish's screen time, everybody will be crying and shouting because he's just a crowd puller. But I think for the story to work, they need to kind of focus on developing the other tracks as well. So that's why it's an 8. But other than that, it's a fantastic show, great progression. I'm really hooked. Alright, so 8 मेरी तरफ से भी 8 ही है. मजेदार मुझे लगा है शो, और एक्टर्स जो हैं उनकी एक्टिंग भी कह लें, और स्टोरी स्क्रीन प्ले बड़ा जबरदस्त है, पकड़ के रखा हुआ है हमें. और खास तौर पे जो लास्ट सीन था उसने तो एकदम से शूट अप कर दी, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि नॉर्मल चल रही है स्टोरी, अभी ये चल रहा है, अभी ये आ रहा है. अहमद अली अकबर को वही एंग्री यंग मैन दिखाया हुआ है कि मैं नहीं माफी मांगूंगा, और बट एंड में जो गाड़ी से निकलता है और निकलने का पूरा सीक्वेंस, उससे पहले वो बारिश, और फिर एंड में जो है वो जो
गोली मारता है उसके जो अपने पार्टनर को, तो that has elevated this drama a lot. So 8 from my side as well. Alrighty. Okay, so I think it's a wrap for us today. So we are all excited to watch Farrar, and hopefully you enjoyed our conversation today on the show as well. We are looking forward to bring you more such reviews in the future. So till then, stay tuned and do subscribe to our channel and listen to us. Tune in to listen to us as well. Bye from me. Bye everyone. Bye, Allah everyone. Hafiz.